ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੀ ਲੋਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਸੀ ਕਿਆ ਉਖਰ ਮਗਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਹੋਈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਕੀ ਮਗਰ। ਸਿਰਫ ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਫਿਟਕਾਰਿਆ, ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਦਾਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਖੱਟੂ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸੁਦਾਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮਖੱਟੂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਈ ਹੈ। ਬੋਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੋਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ। ਅਵਲ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੜਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ, ਪਰਦਾਦੇ ਦਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। तो इतना उच्चा क्या मनुख हो सकता है? हो सकता है। कबीर दावा पे कर देन
हुण कबीर कबीर नहीं रहा, कबीर राम हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछाने। ठीक है, कबीर एक बूंद सी, राम एक सागर सी। पर कबीर कहते ने ये हुण बूंद सागर दे च लीन हो गई है। कबीर कबीर नहीं रहा, कबीर राम हो गया। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जैसा परमात्मा है, जितने चिर तक उस सुभाव नूं, उन्हां गुणां नूं मनुख प्राप्त नहीं आउंदा, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। तो मैं अर्ज करां, हर शहर दे च धनवान होंदे ने, समझ दे च आ जांदे ने। सब कुछ बाहर दा सिलसिला है, ते मनुख दे कोल बाहर दा ज्ञान अज पहले नालों बहुत ज्यादा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अज जितने ने पहले नहीं सन, हैगे ही नहीं सन। अज मनुख दे कोल बाहर दा ज्ञान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और ज्ञान करके अज मनुख दे कोल हंकार भी बड़ा प्रबल है। ज्ञान, हंकार ते ज्ञान दा हुंदा है, तू की जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा। हंकार बड़ा प्रबल हो गया, बहुत प्रबल हो गया। ये एक बहुत वड्डी सच्चाई है। हंकार दी बुनियाद ज्ञान है। हंकार ज्ञान दी पिठ ते बैठ के असवारी करदा है। भगत रविदास कहंदे ने, हंकार औगणा ते बैठ के असवारी कर ही नहीं सकता। औगणा दा की हंकार? एक मनुख माण कर सकता है, मैं माड़ा मोटा दानी नहीं हाँ, बहुत वड्डा दानी हाँ, हंकार कर सकता है। पर एक बंदा एक किस तरह हंकार कर सकता है, मैं माड़ा मोटा चोर नहीं हाँ, बहुत वड्डा चोर हाँ। तो चोरी दा की हंकार किस तरह करेगा? चोरी दे आसरे ते अपनी हंकार दी यात्रा नूं किवें चलावेगा? एक मनुख कह सकता है, मैं माड़ा मोटा ज्ञानी नहीं, बहुत वड्डा ज्ञानी है। पर एक मनुख एक इस तरह आख सकता है, मैं माड़ा मोटा मूर्ख नहीं हाँ, बहुत वड्डा मूर्ख हाँ। तो मूर्खता के आसरे ते हंकार किवें यात्रा करेगा? किस तरह यात्रा करेगा? हंकार हमेशा गुणा दिते असवार होके चलता है। इहदा जिक्र कीता है रविदास ने, हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कबे न नासी। ए हंकार दी बुध नास होई नहीं। मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत उच्ची कुल दा मालक, मैं बहुत वड्डा दानी, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी, मैं बहुत वड्डा सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी। हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कवे न नासी। कह रविदास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। सब पागल ने, गुणा दे असरे ते हंकार पे करदे ने, ते गुण मनुख दे अपने नहीं ने। सब गुण तेरे, मैं नाही कोय। भावें मेरे घर दे च चानना है, पर चानना ते सूरज दा है। भावें मेरे घर दे च दीवा जल रहा है, पर यह ज्योति ते सूरज करके, सूरज ना होवे ते दीवा भी नहीं हो सकता। भावें किसी कोल कोई गुण है, सारे गुण परमात्मा तो आउंदे ने। भावें मेरे घर दे च चानना है, चानना ते सूरज करके। भावें मेरे घर दे च दीवा जल रहा है, ये जलदा होया दीवा भी सूरज की रोशनी करके है। कोई भी गुण है, उदा सीधा संबंध परमात्मा नाल हुंदा है, और गुणां दे आसरे ते परमात्मा नाल जुड़िया जा सकता है।
पर जद गुणां दे ते मनुख अपना दावा करता है मेरा है, ये गुण उस लिए घातक बन जाते हैं। ये भी महसूस करते हैं। इस तरह घातक बन जाते हैं जिवें कोई जलदे दीवे नाल अपना मकान जला लवे, अपने मकान नूं साड़ देवे। इस तरह अज दे युग दे विच हंकार वध गया, बहुत वध गया। तो मैं दोहरावां, प्रथम ते संत हर शहर दे विच होंदा नहीं, होंदा ही नहीं। होंदे ने धनवान, होंदे ने राजनैतिक, होंदे ने वड्डे वड्डे व्यापारी हर शहर दे विच, होंदे ने इंजीनियर डॉक्टर लॉयर हर शहर दे विच, होंदे ने राजनैतिक हर शहर दे विच, होंदे ने दार्शनिक फिलोसफर चिंतक कलाकार हर शहर दे विच। नहीं होंदे हर शहर दे विच भगत संत, नहीं होंदे किसे किसे शहर च। चंदन तरना बन बन साध ना पुर पुर माए। अवल ते साधु हर शहर दे विच होंदा नहीं, ते जे किसे एक अध शहर विच होंदा है ते समझिया नहीं जाता। और गुस्ताखी माफ, अक्सर जो पूजे जाते ने साधु नहीं होंदा, नहीं होंदा। किधरे मैनू निंदक ना समझ लेना, क्योंकि मेरी हुण 50 साल हो गई है जिंदगी कथा करदे हां। सारे डेरियां च मैं हाजरियां भरियां ने, देश विदेश दे मेरा भरमण रहा है। हर मजहब हर धर्म दे साधु टोलियां नाल मेरा संबंध रहा है। सिर्फ लकब नाम ही संत ते साधु है, बाकी कुछ भी नहीं। और जिथे कुछ है वो गुमनाम है, गुमनाम है। मोको कोई न जानस कहियत जास तुम्हारा। हे प्रभु, हां ते मैं तेरा ही दास, पर मैनू जानदा कोई भी नहीं, किसी नू कोई पता नहीं। कोई ना जाने कोई ना माने, शहर दे किसी ने उसनू मनिया भी नहीं, शहर दे किसी ने उसनू समझिया भी नहीं। कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे। शहर दे ते गुप्त रह गए, किसी ने जानिया नहीं, प्रभु दे दरबार विच प्रगट हो गए। परमात्मा दे दर ते प्रगट, ईश्वर दे दर ते प्रगट। मनुखां दी नज़रां ओले रहे, ओझल रहे। मैं 2-4 का जिक्र किया है। अपने समय मुहम्मद साहब भी ठुकराए गए ने, ईसा सूली ते चाड़े गए ने, गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठाया है, गुरु नानक नूं बोतलां बेताला आखिया ते बाबर ने जेल विच भी पाया। 6वें पातशाह भी ग्वालियर दे किले विच बंद ने। 9वें पातशाह चांदनी चौक विच अपना सीस कटवा रहे हैं। 10वें पातशाह की सारी जिंदगी उलझना दे च रही, बच्चे नीहां दे च चिणे आए ने। तुसी दुनिया दे सारे अवतारां दे ते चोटी दे संतां दे उत्ते निगाह मारना, संसार ने समाज ने कबूल ना कीता। कारण एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। इतनी कोई सूझबूझ रखदा होवे। अवल ते पूरन संत किसी शहर च होंदा नहीं, ते जे होंदा ते समझिया नहीं जाता। ये मैं एक बड़ी प्रबल सच्चाई बयान करदा। मैं ना अखां नाल 10-12 सज्जन ते सिख जगत दे च देखे ने, 5-7 हिंदू जगत दे च देखे ने, एक जैनी वीर भी देखा इंदौर दे च, और एक मुस्लिम भी देखा बंबे दे च। लेकिन गुमनाम, गुमनाम, बिल्कुल गुमनाम। कोई ना जाने कोई ना माने। लोगों ने ये ते जाने है फलाना है, लोगों ने ये नहीं जाने है संत है। लोगों ने ये ते जाना फलाना काम करता है, लोगों ने ये नहीं जाने फकीर है।
ਭਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक खास हिरदा चाहिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं कि वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता।